دوستو یہ کہانی ہے اس فیملی کی جنہیں قسمت اس موڑ پر لے آئی تھی کہ وہ اپنی اب تک گزرنے والی ساری زندگی کا پہلی بار اس قدر بھیانک روپ دیکھنے پر مجبور تھے اور اس قدر خوف زدہ تھے کہ شاید باقی رہتی زندگی تک اس بھیانک رات کے تلخ ترین لمحات بھلانے سے قاصر ہی رہیں۔ ہیلو دوستو، آپ کا ہمارا یوٹیوب چینل اسٹوری وائس میں سواگت ہے۔ دوستو آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں بےحد ہی ڈراؤنی اور خوفناک کہانی۔ دوستو زیادہ سمے نہ لیتے ہوئے آئیے ہم اس ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں۔ یہ اول سردیوں کے دن تھے۔ ہم سب میری خالہ کے ہاں ملنے جا رہے تھے۔ راستے میں خوش گپیاں اور سفر کو انجوائے کرتے اور موج مستی کرتے ہوئے اس قدر خوش تھے، یہ بالکل بھی نہیں جانتے تھے کہ چند لمحوں میں ہماری خوشی کس قدر برے طریقے سے ہم سے چھین لی جائے گی۔ جیسے ہی ہم اس تقریباً ویران پڑے اسٹیشن پر اترے، ماحول میں عجیب سی پراسراریت کا احساس ہوا تھا۔ یہ اسٹیشن بہت ہی کم استعمال کیے جانے والا قدرے ویران سا اسٹیشن تھا۔ ہم یہاں پر کافی عرصہ پہلے میرے بچپن میں ایک بار آئے تھے اور اب میں 15 سال کا ہو چکا تھا۔ تقریباً 8 سے 10 سال بعد یہاں دوبارہ آئے تھے تو اس اسٹیشن کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تھے۔ اسٹیشن پر اترتے ہی خوفناک قسم کی خاموشی نے ہمیں کسی کفن کی مانند لپیٹ لیا تھا۔ اسٹیشن کی نہایت مدھم سی جلتی بجھتی روشنی دیواروں پر بھیانک قسم کے سائے بنا رہی تھی۔ میری بہن جو کہ صرف 6 سال کی تھی اور میری امی ابو سب ایک دوسرے کے ساتھ چپک کے کھڑے ہو گئے۔ ہماری نظریں ہر طرف مٹی سے بھرے اس اسٹیشن کو اسکین کر رہی تھیں۔ اسٹیشن پر کسی غمزدہ عورت کے رونے کی آواز جیسے گونج رہی تھی اور ہمیں خوفزدہ کر رہی تھی۔ ہم اس چھوٹے سے قصبے کے اس نہایت کم رش والے اسٹیشن پر خالہ کے گھر جانے کی غرض سے اترے تھے، لیکن یہاں پر کچھ تو ایسا تھا جو کافی غلط تھا۔ یہ اسٹیشن جیسے ہمارے انتظار میں تھا اور اس کا خالی پن جیسے ہمارے لیے کچھ بھیانک تیاری کیے ہوئے تھا۔ اس اسٹیشن پر دور سے دیکھنے سے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے تھوڑی بہت ہی صحیح مگر چہل پہل ہے، جبکہ اترنے کے بعد صرف خاموشی، تاریکی اور اسٹیشن کا خالی پن ہمارے گلے پڑ چکا تھا۔ ابو نے ہلکی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، ہمیں یہ اسٹیشن جتنا جلدی ہو سکے چھوڑ دینا چاہیے۔ جب ہم اسٹیشن کے اسٹاف کے بیٹھنے کی جگہ کے پاس سے گزرنے لگے تو وہاں پر ہم نے نہایت انہونی سی چیز دیکھی۔ ہر طرف لائٹس آن تھیں مگر وہاں پر نہ کوئی بندہ تھا اور نہ ہی بندے کے ساتھ۔ پورا اسٹیشن بالکل خالی تھا سوائے ہماری فیملی کے۔ وہاں پر تو جیسے کوئی پرندہ بھی موجود نہ تھا۔ ہم نے یہ کہہ کر خود کو بہلا لیا کہ شاید یہاں کے ورکرز اتنے غیر سنجیدہ ہیں کہ ڈیوٹی کے دوران ہی اٹھ کر جانے کہاں چلے گئے، مگر تبھی ہمیں ٹک ٹک کی آواز سنائی دینے لگی۔ جب آگے بڑھ کر ٹکٹ چیمبر والی کھڑکی سے اندر جھانکا تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ٹکٹ پرنٹر آن تھا اور دھڑا دھڑ ٹکٹ تیار ہو رہے تھے، اور دوسری بات جس نے ہمیں چونکنے پر مجبور کیا تھا کہ دوسری ٹیبل پر وہ ٹکٹیں باقاعدہ ترتیب سے رکھی جا رہی تھی۔ یہ سب دیکھنے میں ہی کافی غیر معمولی تھا۔ اس پر یوں بغیر کسی شخص کی موجودگی کے وہاں پر باقاعدہ کام ہونا ہمیں بری طرح سے خوفزدہ کر گیا تھا۔ ہمارے دل بری طرح دھڑک اٹھے تھے۔ یہ بات ہی خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھی کہ وہاں پر کوئی اندیکھی ہستی موجود تھی جو ٹکٹ پرنٹر کو بھی آپریٹ کر رہی تھی اور ساتھ ہی ٹکٹس کو ترتیب سے بھی رکھا جا رہا تھا۔ میری چھوٹی بہن خوفزدہ ہو کر امی کو چپک گئی تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ ابو نے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کی اور یہ ظاہر کرنا چاہا کہ سب معمولی باتیں ہیں۔ ساتھ ہی ہمیں یہ وضاحت بھی دینے لگے کہ کچھ مشینیں آٹومیٹک ہوتی ہیں اور خود بخود ہی کام کرتی ہیں، پرنٹر بھی اسی طرح کی ایک مشین ہوگی۔ مگر تب اچانک لائٹ چھلمل ہوتے ہوئے بالکل مدھم ہو گئی۔ اب بھیانک ترین اندھیرے میں ہم سب مزید خوفزدہ ہو چکے تھے اور پرنٹر کی ٹک ٹک ابھی بھی ہمارے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ اس ٹک ٹک سے ایسے احساس ہو رہا تھا کہ جیسے کسی انجانے اور بھیانک ترین واقعہ کے ہونے کے لیے گھڑی کی ٹک ٹک ہے، جس کی آواز سے ہر لمحہ مزید سے مزید خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ یہ ٹک ٹک دلوں کو دہلا کر رکھ دینے والی آواز تھی۔ ہم سب اس آواز کی وجہ سے اس قدر خوفزدہ تھے کہ ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے موت ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے۔ ہمارے جسم بری طرح کانپ رہے تھے۔ عمارت کے اندر باہر ہر طرف ہوا کے تیز بھنور چلنے لگے اور ساتھ ہی کسی انجان عورت کی سرگوشیوں کی آواز سنائی دینے لگی۔
काफ़ी गौर करने पर पता चला कि ये शायद कोई धमकी थी या तो ये हमें आगाही दे रहा था कि अब सब जिंदा नहीं बच सकते, यहाँ पर कोई भी हमारी मदद करने के लिए नहीं आ सकता। शदीद से शदीद हालात का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते हुए सरगोशी की आवाज़ में अजीब सा सोच था, या शायद हमें ऐसे महसूस हो रहा था। ये सरगोशियाँ हर तरफ से सुनाई दे रही थीं, जैसे दीवारों के पीछे से कोई सरगोशियाँ कर रहे हैं। मेरे अब्बू ने कुछ बोलने की कोशिश की, मगर उनकी आवाज़ जैसे हलक में ही अटक गई थी और वो ख़ुद भी अपनी जगह जम चुके थे। अम्मी ने बहन के साथ मुझे भी अपनी बाजों में भींच लिया, जैसे हमें किसी अनहोनी से महफूज करना चाहती थी। टिक टिक की आवाज़ मज़ीद ऊंची होने लगी थी, जैसे ये इशारा दे रही हो कि हमारी बर्बादी का वक्त शुरू हुआ चाहता है। साथ ही लाइट एक बार झिलमिलाई, फिर दूसरी बार कदरे हल्की होते हुए बिल्कुल ही चली गई, जैसे लाइट भी हमारे खौफ में इजाफा करने के लिए हमारे साथ खेल खेल रही थी। हम उस खौफनाक और भयानक टिक टिक की आवाज़ से घबरा कर मेन एंट्रेंस और एग्ज़िट की तरफ जाने की कोशिश करने लगे। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हम दोबारा स्टेशन की तरफ जा पहुँचे थे, मगर सरगोशी की आवाज़ स्टेशन पर दूर से दूर होते रहने के बावजूद भी वाज़ेह सुनाई दे रही थी। मेरे अब्बू ने सरगोशियों और टिक टिक की आवाज़ से बचने की खातिर काफ़ी दूर निकल जाना चाहा था, मगर सब कुछ ही बेकार साबित हो रहा था। तब हम एक बार फिर से मेन एंट्रेंस और एग्ज़िट की जानिब गए, ताकि हम उस भयानक और अंधेरे में डूबे पुरअसरार स्टेशन से बाहर निकल सकें। मगर एग्ज़िट पर पहुंचने से थोड़ा पीछे इमारत की खिड़कियों के शीशे तेज़ी से टूटने और हवा में उड़ने लगे। शदीद तरीन हवा के झक्कड़ और उसमें मौजूद शीशों के टुकड़े देखकर ज़ख्मी होने के खौफ से हम लोग आगे नहीं जा पा रहे थे। मगर हम अपनी जगह खड़े होकर उस हवा के रुकने का इंतज़ार करने लगे तो वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार करने लगी और मुख्तलिफ़ आवाज़ों में चीखें भी बुलंद होने लगी। साथ में कांच हमारी जानिब भी हर तरफ फैलने लगे थे, जिससे हम लोग वापस स्टेशन की अंदरूनी जानिब चले आए थे और एक बार फिर से उसी खूब अंधेरे में भयानक तरीन अंदाज से ऊंची होती हुई टिक टिक और सरगोशियों की आवाज़ सुनने पर मजबूर थे। सरगोशियाँ अब भयानक तरीन शोर की आवाज़ में बदलने लगी थी। मेरी बहन ने मेरे हाथ को मजबूती से पकड़ लिया था। वो बुरी तरह घबरा रही थी। मेरे अब्बू हमें मुतमईन करते और तसल्ली देने की कोशिश करते रहे, मगर उनकी अपनी आवाज़ कांप रही थी और ज़ुबान लड़खड़ा रही थी। अभी हम इस खौफ से नहीं उभर पाए थे कि हमें स्टेशन के अंदर से भारी कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। रफ्ता रफ्ता कदमों की चाप हमारी जानिब मज़ीद करीब से करीब होती जा रही थी। हमने अंधेरे में पूरी कोशिश करते हुए कि शायद कुछ दिखाई दे सके, मगर हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हम सभी एक दूसरे के साथ चिपके एक दूसरे की मौजूदगी से ख़ुद को दिलासा देने की कोशिश करते थे। आवाज़ें उस कदर करीब आ चुकी थीं कि हमारी चीखें फ़िज़ा में बुलंद होने लगीं और मेरी बहन तो ऊंची ऊंची आवाज़ से रोने लग गई थी। तभी हमें कदमों की चाप के साथ भेड़ियों की खौफनाक गुर्राहट भी सुनाई देने लगी थी। मेरे वालिदैन इन आवाज़ों से पूरी तरह घबरा गए थे। ये सूरत हाल मज़ीद भयानक शक्ल इख्तियार कर गई थी। अब हम सब यकीनन सोच रहे थे कि हमारी मौत हमारे सर पर मुंडला रही है और हम बिना किसी को इल्म हुए आज रात शायद ख़त्म कर दिए जाएंगे, क्योंकि हम खाला या उसके घर में से किसी के साथ भी राब्ते में न थे और बिना बताए ही उनकी जानिब जाने के लिए निकल आए थे। और अब इस अजीब सी कैफियत में बुरी तरह फंस चुके थे और गुर्राहट की आवाज़ मज़ीद करीब से सुनाई देने लगी और हमें अपने कदमों के नीचे ज़मीन में वाज़ेह तौर पर इर्ताश भी महसूस हो रहा था। हमारे वालिदैन ने हमें महफूज करने की कोशिश की, मगर वो ख़ुद भी बुरी तरह से घबराए हुए और खौफज़दा थे। तभी अचानक से लाइट एक बार फिर से ऑन हुई। ये चंद पल के लिए था, मगर उसमें ही हमें दूर से काफ़ी बड़ी तादाद में आते भेड़िए दिखाई दिए। उनकी आंखें अंधेरे में भी चमकने लगीं और एक बार फिर से लाइट बंद हो गई थी। हम उस अंधेरे में महसूर होकर रह गए थे। हम बुरी तरह से मायूस हो चुके थे और अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे थे कि तभी मेरे कान में बहुत ही हल्की आवाज़ में कुरान पाक की एक आयत गूंजी। अब इसको सुनकर मुझे अचानक ही कुरान पाक के आयत का विर्द करने का ख़याल आया। ये शायद किसी नेक मखलूक की जानिब से हमें इशारा था कि हमारे पास एक मजबूत हथियार कुरान पाक की सूरत में अभी भी मौजूद है। भेड़िए हमारे काफ़ी करीब पहुंच चुके थे, इस तरह कि उनकी सांसें भी हमें महसूस हो रही थी।
तब मैंने आंखें बंद करते हुए ऊंची आवाज़ से कुरान की जो भी आयत मेरे दिमाग में आती गई मैं इसको दोहराता गया। मेरी देखा देखी अम्मी अब्बू ने भी कुरान की मुख्तलिफ आयत का विर्द करना शुरू कर दिया था। हमने अल्लाह पर तवक्कल किया और आंखें बंद करके कुरानी आयत का विर्द जारी रखा। ये आयत हमारे अपने ही दिमागों में गूंजते हुए हमें इत्मीनान का एहसास दिला रही थी। रफ्ता रफ्ता हमारे खौफ की कैफियत में कमी होने लगी। हम खुद को एक महफूज हिसार में महफूज कर रहे थे। भेड़ियों की आवाज़ों में अब कमी होना शुरू हो गई थी और रफ्ता रफ्ता ये आवाज़ें बिल्कुल ना होने के बराबर रह गई थी। कुछ देर बाद मैंने डरते डरते आंखें खोली तो जैसे सब कुछ ही गायब हो चुका था। स्टेशन पर नॉर्मल से अंदाज में लाइट तो ऑन थी, अलबत्ता वहाँ पर बंदा वाकई कोई मौजूद न था। शायद यहाँ पर ज़्यादा बंदों के आने जाने का कोई चांस न था, इसलिए बंदा भी ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुकता था। फिर हम इस भयानक स्टेशन से बाहर निकलने में कामयाब हुए और अपनी खाला के घर रवाना हो गए, मगर हमारे चेहरों पे खौफ की वजह से जर्दियाँ खंड चुकी थीं और हम काफ़ी वीरान सी हालत में थे, क्योंकि स्टेशन पर हर तरफ भागने और ख़ुद को भयानक सरगोशियाँ और टिक टिक की आवाज़ों से महफूज रखने की खातिर हम काफ़ी बेहाल हो चुके थे। खाला के शौहर ने जब अब्बू से हमारी हालत की वजह पूछी तो अब्बू ने सब कुछ उन्हें बता दिया। तब उन्होंने कहा कि आप लोगों को आने से पहले हमें इत्तला कर देना चाहिए थी। अगर आप इत्तला कर देते तो हम आपको पहले ही यहाँ पर ट्रेन के ज़रिए आने से मना कर देते और बस का सफ़र ही करने की राय देते। हमारे गांव में तकरीबन सभी लोग इस स्टेशन को छोड़ चुके हैं और बस के ज़रिए सफ़र करते हैं। ये सुनकर हमें काफ़ी मायूसी हुई थी कि वाकई हमें पहले इत्तला कर देनी चाहिए थी और हमें उन भयानक हालात का सामना न करना पड़ता। मेरी बहन तो कुछ अरसे के बाद अम्मी और अब्बू की मेहनत और तवज्जो की मदद से सब कुछ बोलने में कामयाब हो गई थी, मगर मैं आज तक उसी खौफ के ज़ेर असर हूँ। भले हम वहाँ से ज़िंदा बच आए थे, मगर हमें अपना भयानक तरीन अंजाम हर लम्हे में महसूस हो रहा था और इस कदर करीब से भेड़ियों की आवाज़ें और दूसरे भयानक हालात का सामना करना आसाब पर काफ़ी भारी साबित हुआ था। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी। ये कहानी एक शादीशुदा जोड़े की है जो मामूलाती ज़िंदगी शुरू करने से पहले कुछ वक्त एक साथ गुजारना चाहते थे ताकि वो सारी ज़िंदगी इनको खूबसूरत यादों को दिल में बसा कर रख सकें। दोस्तों ये नहायत ही खौफनाक कहानी है। कमज़ोर दिल वाले इस कहानी से दूर रहें। तो चलिए ये कहानी उस शख्स की ही ज़ुबानी सुनते हैं। हम नारायण कागान की जानिब अपने हनीमून से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए हम सफ़र पर रवां दवां थे। आसपास मौजूद मनाज़र हमारे दिलों को जैसे किसी सहर में मुब्तला कर रहे थे। ये वादी नहायत खूबसूरत थी और मैं दिल ही दिल में ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि काश मेरे पास एक महीने की बजाय कुछ ज़्यादा वक्त होता तो मैं अपनी नई नवेली दुल्हन के हमरा यहाँ पर मज़ीद खूबसूरत लम्हात गुजार सकता। एक महीने का वक्त इन खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए मुझे नहायत कम मुद्दत महसूस हो रहा था। कागान पहुंचकर हमने एक होटल में बुकिंग करवाई और सफ़र की थकावट उतारने के लिए चंद घंटों तक आराम करने का फ़ैसला किया। फिर शाम को वहाँ की खूबसूरती को मज़ीद गहराई में जांचने के लिए हम होटल से रवाना हो गए थे और रात का खाना भी बाहर से खाकर ही लौटे थे। 2 दिन तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल सा था और मेरी बीवी भी यहाँ की खूबसूरती से बेहद मुतासिर थी और खुश भी थी, क्योंकि वो एक मैदानी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली थी। तीसरे रोज़ मुझे किसी शख्स ने एक तरफ बुलाकर खामोशी से इस बात से आगाह करना चाहा कि इस होटल में कभी कभी बहुत भयानक वाक़यात रूनुमा होते हैं, इसलिए हम बहुत एहतियात से रहें और हो सके तो इस होटल की बजाय किसी और होटल में जाकर क़याम कर लें, क्योंकि यहाँ पर किसी और मखलूक की मौजूदगी के भी आसार हैं। मैंने इसकी बात पर खामोशी से इस बात में सर हिलाया और वहाँ से चल दिया था, मगर मैं उसकी बातों पे यकीन नहीं करता था और ना ही मेरा उस खूबसूरत तरीन व्यू वाले होटल से जाने का इरादा था। मैं वैसे भी जन्नात वगैरह की बातों पर ज़्यादा यकीन नहीं करता था। मैंने दिल में सोचा कि ज़रूर ये शख्स इस होटल के मालिक से कोई बुग़्ज़ रखता है और इसी वजह से यहाँ पर आने वाले ग्राहक दूसरे होटल में भेजने की कोशिश करता है। मगर रफ्ता रफ्ता हम लोगों ने अजीब सी हरकत महसूस की। कभी बहुत हल्की सी आवाज़ में दरवाज़े पर दस्तक महसूस होती थी तो कभी अनजान खुशबू का फैल जाना हैरान करता था। फिर वॉशरूम में मौजूद शीशे पर सेकंड के 1000वें हिस्से में किसी अक्स का उभर कर गायब हो जाना और फिर वो रफ्ता रफ्ता कमरे में मौजूद ड्रेसिंग टेबल के शीशे में भी ज़ाहिर होता और खिड़कियों के शीशों में भी ये अक्स दिखाई देने लगा।
मगर इतने थोड़े से लम्हे के लिए होता था कि इसको भी मैं अपना वहम समझकर मुसलसल नज़रअंदाज कर रहा था। मगर मेरी बीवी अब इन सब हरकत से घबरा गई थी। ये अक्स काफ़ी धुंधला सा दिखाई देता था। अलबत्ता इस अक्स की एक झलक में भी इसकी आंखें सिरे से गायब दिखाई देती थीं, यानी आंखों की जगह सिर्फ स्याह गड़े होते थे। मैंने जब अपनी बीवी को इस कदर खौफज़दा होता देखा तो उसको बहला फुसला कर उस बात का यकीन करने पर मजबूर कर दिया कि ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ वहम है। अगर कोई चीज़ यहाँ पर मौजूद होती तो हमें सिर्फ दिखाई ना देती बल्कि कुछ ना कुछ हरकत भी तो ज़रूर करती। मैं ख़ुद तो बीवी के आगे ये बात मानने से ही इनकारी था कि मैं भी ये अक्स 2 से 3 बार देख चुका हूँ। अब मैंने अपनी बीवी को और ख़ुद भी ज़्यादा से ज़्यादा शीशों को अवॉइड करने की कोशिश की ताकि हम इस अक्स को ना देख सकें, मगर मेरी बीवी अब मुस्तकिल खौफ का शिकार रहने लगी थी और मुसलसल ज़िद कर रही थी कि हम या तो होटल बदल दें, नहीं तो इस वादी से ही निकल जाएं। अगर फिर कभी मौका मिलता है तो हम वापस आ सकते हैं, मगर फ़िलहाल यहाँ पर रुकना मुनासिब नहीं है। मुझे अब अंदाज़ा हो रहा था कि मेरी बीवी काफ़ी कमज़ोर दिल की मालिक है और वो जल्द ही घबरा जाती है, मगर मैं अपने इस खूबसूरत टाइम को ज़ाया नहीं करना चाहता था। मैं एक 9 से 5 तक ड्यूटी करने वाला मुलाजिम था और मेरे लिए रोज़ रोज़ यूँ छुट्टियाँ लेकर घर से निकलना मुमकिन न था। इसलिए मैंने अपनी बीवी को इस खौफ से निकालने की कोशिश करना शुरू कर दी। इसलिए रोज़ाना ही मैं अपनी बीवी को बाज़ारों में और मुख्तलिफ़ खूबसूरत तरीन मुकामात पर लेकर जाने लगा था ताकि मेरी बीवी का जहन उस खौफ से निकलने में उसको मदद करे। मैं चाहता था कि उन खूबसूरत लम्हात से ज़्यादा खूबसूरत यादें कशीद कर लूँ, जो कि शायद बकिया ज़िंदगी में हमारे लिए खूबसूरत तरीन यादें हो जाएंगी। न जाने फिर कभी हमें निकलने का मौका मिले या ना मिले। सो बीवी के इसरार करने पर भी इसको इधर उधर की बातों में बहलाने की कोशिश करता था, मगर उसकी इस ज़िद को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर रहा था। मगर अगले 3-4 रोज़ में मैंने अपनी बीवी के चेहरे पर सर्दियाँ खुंडी हुई महसूस की थी। मुझे अपनी बीवी के इस तरह से रफ्ता रफ्ता कमज़ोर होने पर थोड़ी सी तशवीश होती थी। मगर हमारे इस होटल में क़याम के 7वें दिन रात के वक्त मैंने इस कदर भयानक बात महसूस की थी कि मैं भी इस बात को संजीदगी से लेने पर मजबूर हो गया था। मैं ये सोचने लगा कि हमें इस वादी से ही वापस लौट जाना चाहिए। उस रात मैंने नींद में अपनी बीवी की घबराई आवाज़ और उसके बाद चीख सुनी तो मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा था। मेरी बीवी की आंखें एक ही नुक्ते पर साकित हो चुकी थीं और उसका पूरा जिस्म बुरी तरह से लर्ज़ रहा था। जब मैंने अपने बेड के सामने मौजूद ड्रेसिंग टेबल के शीशे में बेइख्तियार नज़र उठाई तो वहाँ मुझे अपनी बीवी के पीछे वही अक्स खड़ा हुआ दिखाई दिया। इस बार वो गायब नहीं था बल्कि वहीं पर मौजूद था और उसके चेहरे पर एक भयानक किस्म की मुस्कुराहट थी। ये सब देखकर मैं अपनी जगह पर जम कर रह गया था। मुझे अपने पूरे जिस्म पर बोझ महसूस हो रहा था। मैं अपने सख्ता सदा वजूद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा, मगर सभी बेकार साबित हो रहा था। मेरी बीवी के कान में उस शख्स ने कोई सरगोशी की, जिसके बाद मेरी बीवी की आंखें हैरत से फैल चुकी थीं और वो बेबसी की तस्वीर बनी हुई बेबसी से आंसू बहा रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने हवास काबू में किए और ख़ुद को इस सख्ते से बाहर निकाला और अपनी बीवी को हाथ से पकड़कर कमरे से निकलता चला गया। लॉबी में कुछ वक्त गुजारने के बाद हम उस होटल से ना सिर्फ निकले थे बल्कि गाड़ी में सवार होकर उसी वादी से ही निकलते चले गए। मैं इस कदर भूखलाहट का शिकार था कि हमारा सामान भी उसी होटल में पड़ा रह गया, मगर मुझे सिर्फ अपनी बीवी को बचाना था जो कि ख़तरनाक हद तक जर्द पड़ चुकी थी। मैं अपने ख्वाबों और शादी के अव्वल दिनों की खूबसूरत यादगार लम्हात गुजारने जैसी बातें सब कुछ भूल चुका था। घर पहुंचकर मैंने सुकून का सांस लिया। मेरी बीवी भी रफ्ता रफ्ता मुकम्मल तौर पर नॉर्मल दिखाई देने लगी थी और मैं अपने इस फ़ैसले पर मुतमईन था कि मैंने मज़ीद वहाँ ठहरने की गलती न की थी। अब घर पर ही मैंने अपनी बीवी के साथ खूबसूरत वक्त गुजारना चाहा था। हम अपने घर पर तन्हा ही मौजूद थे। मेरे घर वाले हमारे साथ रिहाइश पजीर न थे, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर भी हम अपने फ़रागत के ये लम्हात खूबसूरत बना सकते हैं। वो भी ऐसी एक हल्की फुल्की सी रात थी। हम लॉन में टहल रहे थे और साथ ही आपस में बातें कर रहे थे। आज हमारा मूड काफ़ी खुशगवार था। मेरी बीवी जैसे मुकम्मल तौर पर वो सब कुछ फरामोश कर चुकी थी। इसको इस कदर मुतमईन देखकर मैं भी मुतमईन था, मगर तभी अचानक मेरी बीवी की नज़र एक ही नुक्ते पर जम गई।
میں نے اپنی بیوی کو اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا، مگر وہ تو جیسے کسی اور ہی دنیا میں موجود تھی۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو مجھے ایک پل کے لیے دوبارہ سے وہی عکس اپنے ہی کمرے کی کھڑکی میں دکھائی دیا۔ یقین کیجئے اس وقت میری کیا کیفیت تھی میں بیان نہیں کر سکتا۔ اب مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ ہم وہاں سے اکیلے نہیں آئے تھے، بلکہ اس انجان اور بھیانک ترین عکس کو بھی اپنے ہمراہ ہی لے آئے تھے۔ میری بیوی کا پورا وجود ہی کسی پتھر کی مانند اکڑ چکا تھا، مگر اس کی آنکھیں بے بسی کی تصویر بنی ہوئی تھیں۔ وہ بے حد بے بسی کے ساتھ مجھے پکارتی جا رہی تھی اور ایک ہی بات کیے جا رہی تھی کہ مجھے اس سے بچا لو۔ میں اس اچانک سر پر پڑنے والی پریشانی سے بری طرح بوکھلا گیا تھا اور سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ کس طرح سے اپنی بیوی کو اس عکس کے سحر سے نکالوں۔ میں نے اپنی بیوی کو وہاں سے ہٹانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ جیسے کسی اندیکھی طاقت کے قبضے میں تھی اور میں اس کو ایک انچ بھی اپنی جگہ سے ہلا نہیں پا رہا تھا۔ تبھی اس کے پورے بدن کو شدید قسم کے جھٹکے لگنے لگے اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگی تھی۔ میں بدحواس کبھی گھر کے اندر کی طرف جانے کی کوشش کرتا تو کبھی واپس لوٹ کر اس کے پاس رک جاتا۔ میں سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ اس کو اکیلا چھوڑ کر کس سے مدد طلب کروں یا اس کے پاس موجود رہوں۔ میری بیوی اب بہت اونچی اونچی آواز سے رو رہی تھی اور بری طرح سے تڑپ رہی تھی۔ اس کا چہرہ زرد اور ہونٹ سفید پڑ چکے تھے۔ میرا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا اور میں چاہ کر بھی اپنی بیوی کی تکلیف میں اس کی کوئی مدد نہیں کر پا رہا تھا، نہ ہی مجھے اس قسم کے حالات سے نمٹنے کا کوئی اندازہ تھا۔ ہماری شادی کو ابھی 17 روز ہی ہوئے تھے اور میرے ساتھ وہ حادثہ پیش آ گیا۔ میری بیوی نے اس رات میری آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر جان دے دی تھی۔ اس کے منہ سے سرخ رنگ کا سیال فوارے کی مانند پھوٹ پڑا تھا اور تھوڑی دیر بعد میں اس کی آنکھوں، ناک اور کانوں سے بھی وہی سرخ سیال بہنے لگا۔ میری بیوی کا خوف کی وجہ سے دل پھٹ چکا تھا اور میری کم فہمی اور اس ہوٹل میں رکنے کی بلا وجہ کی ضد نے میری بیوی کی جان لے لی تھی۔ تو دوستو اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔